انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نریندر مودی نے ترکی کے آیا صوفیہ کے فیصلے کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی، تو کیسے طیب اردگان نے بھارت کے خلاف دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ طیب اردگان نے مقبوضہ کشمیر میں فوجیں اتارنے کا فیصلہ کر لیا تو نریندر مودی کی دوڑیں لگ گئیں۔ کیسے نریندر مودی نے ترکی کے سفیر کو بلا کر بڑا مطالبہ کر دیا۔ کیسے ترکی اور بھارت کی لفظی جنگ تجارتی جنگ کی طرف بڑھ گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، نریندر مودی نے صدر ٹرمپ سے رابطہ کر لیا۔ کیسے طیب اردگان کی تاریخی دھمکی نے پورے بھارت کو آگ بگولا کر دیا، اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امریکہ نے نریندر مودی کے خلاف کون سا بڑا فیصلہ کر لیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے اور طیب اردگان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں اور نیچے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، آج سے 3 دن پہلے ترکی نے تاریخی فیصلہ کیا جس میں آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا اعلان کیا۔ تو اس فیصلے کے خلاف مسلسل 3 دن سے بھارت کی ہرزہ سرائی سامنے آ رہی ہے۔ بھارت نے ترکی کے خلاف اقوام متحدہ میں جانے کا اعلان کر دیا، تو دوسری جانب طیب اردگان کا پاکستانی سرزمین کے لیے تاریخی فیصلہ۔ پورے بھارت پر خوف طاری دشمن کی نیندیں اڑ گئیں۔ مودی نے فوری طور پر ٹرمپ سے رابطہ کر لیا۔ طیب اردگان نے کشمیر میں فوجیں اتارنے کا حتمی اعلان کر دیا۔ نریندر مودی انتظامیہ آگ بگولا ہو گئی۔ بھارت کے سفیر کو بلا کر درگت بنا ڈالی اور طیب اردگان کو صاف پیغام بھیج دیا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، عمران خان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ۔ نریندر مودی نے ترکی سے تجارتی جنگ تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملائیشیا کے بعد ترکی پر نصب تجارتی پابندیاں لگائے جانے کا خطرہ بڑھ گیا۔ طیب اردگان نے کشمیر کے مسئلے پر عمران خان کی ہاں میں ہاں ملا دی، وہی اعلان کر دیا جو پاکستان کا بچہ چاہتا تھا۔ مودی اور ٹرمپ کی ایسی چترول کر دی کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں طیب اردگان زندہ باد اور ترکی زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے مان لیا کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی رہنما ہے تو صرف اور صرف طیب اردگان ہے۔ ترکی کے اس بہادر سپوت نے فیصلہ کر لیا، ترکی کی قوم کشمیر کے مسئلے پر اسی طرح پاکستان کے ساتھ ہے جیسے پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہیں۔ ترکی کی عوام کا دل بھی کشمیر کے لیے ویسے ہی دھڑکتا ہے جیسے پاکستانیوں کا دھڑکتا ہے۔ طیب اردگان نے دبنگ اعلان کرتے ہوئے نریندر مودی کو للکار دیا اور ساتھ ہی صدی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی سنا دیا۔ نریندر مودی نے کشمیر سے کرفیو ختم نہ کیا تو ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں اتار دے گا۔ طیب اردگان کا فیصلہ سن کر امریکی صدر کی دوڑیں لگ گئیں۔ فوری طور پر اپنے بھارتی دورے کا ایجنڈا تبدیل کر دیا۔ نریندر مودی ڈر کے مارے بھارت سے فرار کے منصوبے بنانے لگا۔ اندرونی اور بیرونی محاذوں پر شکست کھانے والا مودی اس طرح بھاگے گا جیسے گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق صدر طیب اردگان کا بیان سے پورا بھارت تلملا اٹھا۔ مودی اور بھارتی میڈیا کی چیخیں سرحد پار سنائی دے رہی ہیں، تو طیب اردگان کے بیان نے تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ پورے بھارت میں سوگ کا سماں ہے۔ بھارتی سرکار نے اس بیان کے بعد بڑا فیصلہ کر لیا۔ ملائیشیا کے بعد بھارت نے ترکی سے تجارتی جنگ چھیڑنے کا اعلان کر دیا۔ ترکی سے تجارتی جنگ چھیڑتے ہوئے بھارتی وزارت خارجہ نے ترک صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ بھارت کا ٹوٹ انگ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم ترکی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں
कि वो भारत के अंदरूनी मामलात में दखल ना दे बल्कि हक़ाइक़ का मुकम्मल तौर पर समझे। भारत ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मकबूजा कश्मीर के हवाले से रिमार्क्स एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए तुर्क सफ़ीर को तलब कर लिया और ख़बरदार किया है कि उसके बामी ताल्लुकात पर साख नताइज सामने आएंगे। वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर ने 2 रोज़ा पाकिस्तान के दौरे पर जब पिछले साल उन्होंने दौरा किया था तो कश्मीरी जंग के दौरान गैर मुल्की कब्ज़े के मुताबिक आवाम की जद्दोजहद के साथ कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद का भी मवाजना किया था। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से उन्होंने जब खिताब किया था उसमें कहा था कि 100 साल पहले तुर्की में जो हुआ था उसे आज मकबूजा कश्मीर में दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि तुर्की भारतीय मज़ालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। भारतीय वजारत ख़ारजा का कहना था कि भारत ने तुर्क सफ़ीर उस्कान ने कहा है कि तैयब एर्दोगान के रिमार्क्स में कश्मीर तनाज़ा तारीख को समझने की कमी का मुज़ाहरा किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि हालिया बयान तुर्की की जानिब से ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की एक और मिसाल है, भारत के लिए नाकाबिले कबूल है। उनका कहना था कि भारत के सफ़ीर को तलब करने के शदीद एहतजाज किया और उन्हें सफारती पर्चा थमा दिया। उन्होंने कहा है कि भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए उसे 2 वफाकी इकाइयों में तब्दील कर दिया था और कहा था कि खित्ते में तरक्की होगी। भारतीय काबिज़ फ़ौज के इंसानी हकूक़ की पामाली में मसरूफ़ जहां नौजवानों और बुजुर्गों समेत ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद भी जारी है और उन्हें घरों पर महसूर कर दिया गया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे अभी तक बंद हैं और तलबा मुसलसल 11 महीनों से स्कूलों, कॉलेजों और जामियात नहीं जा सकें, जब भी उनके इम्तिहानात की तैयारियों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। अमेरिका समेत दुनिया भर में मौजूद कश्मीरियों ने भारतीय हुकूमत के मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और आलमी इंसान हकूक़ के इदारों की जानिब से भी भारत को सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया गया तो भारत ने मलेशिया के बाद अब तुर्की से टक्कर लेने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में प्लान किया जा रहा है कि फ़िलहाल मलेशिया पर नाफिज किया गया है, यानी पाम ऑयल की तिजारत मलेशिया के खिलाफ बंद कर दी गई है, जिसके बाद बाकी प्रोडक्ट्स पर भी बंदी लगाई जाएगी। तो ऐसा भी मुमकिन है कि सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर दे। भारत की इन घटिया हरकतों के बावजूद मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने कश्मीर से मुतल्लिक अपने बयान में कायम हैं। अपने बयान में महातीर मोहम्मद ने कहा था कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि मकबूजा कश्मीर उनके ज़मीर की आवाज़ है, ना ही वो अपने बयान से पीछे हटेंगे और ना ही वापस लेंगे। इस प्लान का दूसरा हिस्सा तुर्की पर भी वैसे ही तिजारती पाबंदियां लगाना है, क्योंकि एर्दोगान पाकिस्तानी सरजमीन पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद मंसूबों को मुस्तरद कर चुके हैं। भारत में तुर्की के साथ भी तिजारती जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है कि नरेंद्र मोदी का दौरा भी मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जिस तरह कश्मीर के लिए नारे हक उन्होंने बुलंद किया है, उसने मोदी सरकार को सख्त परेशान किया है। तैयब एर्दोगान ने मोदी सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कश्मीर से अपनी फ़ौजें ख़त्म करने का ऐलान किया है और अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील की थी कि वह इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। उन बयानात की वजह से मोदी ने तुर्की के साथ भी तिजारती जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया, मगर उसका नुकसान मोदी सरकार को ही होगा, क्योंकि मुस्लिम दुनिया इस ज़बरदस्त इत्तेहाद सामने आ रहा है। ख़ासकर पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया का इत्तेहाद मोदी सरकार की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए काफ़ी है। मुस्लिम दुनिया के अजीम रहनुमा रजब तैयब एर्दोगान ने आया सूफिया को जब मस्जिद बनाने का ऐलान किया तो मोदी ने तुर्की के खिलाफ सख्त तिजारती बंदियों का भी ऐलान कर दिया। इसलिए मुस्लिम दुनिया का अब इससे ज़बरदस्त इतिहाद सामने आ रहा है। ख़ासकर पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया का इत्तेहाद मोदी सरकार की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए काफ़ी है। मुस्लिम दुनिया के सबसे बहादुर रहनुमा तैयब एर्दोगान का नरेंद्र मोदी को करारा थप्पड़। नरेंद्र मोदी ने तुर्की को तिजारत बंद करने की धमकियां दी और पहले महातीर मोहम्मद ने नरेंद्र मोदी की चित्रोल की और मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने की पाकिस्तान की हमायत में खुलकर सामने आ गए।
कश्मीर के मामले पर दोनों रहनुमा किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटने का वादा किया। भारत के मलेशिया के बाद तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। तहलका खेज इंकशाफात ने तैयब उर्दगान को गुस्सा दिला दिया। उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर से मोदी को छेड़खानी महंगी पड़ गई। मोदी ने मलेशिया के बाद तुर्की के साथ तिजारती जंग का ऐलान कर दिया, तो दूसरी जानिब तैयब उर्दगान ने भारत के चीथड़े उधेड़ने की ठान ली। साथ ही आलमी ताकतों को ऐलान ललकार दिया और मुतालबा कर दिया कि कश्मीर कानून जैसे मसाइल का हल बड़ी ताकतों और बड़े बड़े इदारों ने ना किया तो मैं इस्लामी दुनिया की अक़वाम मुत्तहिदा बना लूँगा। यही वक्त है सब कश्मीर की आज़ादी के लिए इमरान खान का साथ देकर कोलालमपुर समिट के मंशूर पर अमल करना अब नागुज़ीर हो चुका है। यही वक्त है कि इमरान खान, तैयब उर्दगान, महातीर मोहम्मद मिलकर मोदी को सबक सिखाएं, वरना तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। मोदी ने तारीख की बड़ी गलती कर दी। माशी मुश्किलात से दो चार भारत का शहराजा बिखरने के करीब है तो मोदी सरकार सख्त नताइज से निहायत खौफजदा हो गई है। तुर्की ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान तो मुल्क है, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखने के अज़म का अदा करता है। तैयब उर्दगान मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। भारत बड़ी मुश्किल में फंस गया। मुतनाज़ शोरियत कानून पर तैयब उर्दगान ने भारत के मुसलमानों के दिल जीत लिए। मोदी की खसूसी हिदायत पर भारत ने तुर्की के खिलाफ तिजारती जंग का आगाज़ किया। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के खिलाफ तिजारती बंदियाँ लगाने का खेल एक सोची समझी स्कीम था, मगर मुतनाज़ शोरियत कानून की तरह तिजारती जंग भी मोदी के गले पड़ गई। भारतीय जहाजों ने चोरी मलेशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। भारत में पाम ऑयल की कीमत आसमान को छूने लगी। मलेशिया और पाकिस्तान का मिलकर भारत को सबक सिखाने का वक्त आन पहुंचा। महातीर मोहम्मद मुस्लिम ममालिक के मफाद में इकट्ठे हो गए। उधर महातीर मोहम्मद भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। मुसलमानों की अपनी अक़वाम मुत्तहिदा बनाने का ऐलान करने वाले उम्मत मुस्लिमा के हद अज़ीज़ लीडर तैयब उर्दगान का अमेरिका के बाद भारत पर बिजलियां गिराने को तैयार हैं। अब तुर्की में डॉलर्स की बजाय तुर्किश करेंसी चलाई जाएगी। तुर्क अवाम ने अपने लीडर का भरपूर साथ देने का भी ऐलान कर दिया है। पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।